Hello friends, welcome to my channel Prasad Joshi Astro Universe. Today we are going to look at the Pisces Ascendant and we will try to see how the month of June 2022 is going to pan out for the Pisces Ascendant people. Now Pisces Ascendant is the last sign in our zodiac, and if you look at human body also it represents the feet, which again is the last part when you start from the top. In general, Pisces ascendant people are peace lovers. They are interested in education field. They are fond of books, religion, spirituality. You would see many well-known sages or seers who are born in this ascendant and who have progressed very well in the arena of spirituality. In Pisces ascendant, there would be many people who would pursue the material path. Now, material path is usually indicated by Venus, which happens to be the enemy of the ascendant Lord Jupiter. And if you look closely, the 10th house Lord is also Jupiter. So, not only by the actions but also by the personality type, Pisces ascendant people are usually more inclined towards taking a spiritual or a religious path. And you will also see all these people being much more peaceful and happy in their life compared to those who pursue the material path. Now, ascendant Lord Jupiter is passing through the first house, and this is a very good position for growth in all the aspects that are represented by Jupiter. That is, if you are teaching or you are enhancing your knowledge or you're diving in the area of spirituality and religion, then 3rd to 30th of June is a very good time to pursue all of this. Now, flip side here is that Jupiter passing through here will make sure that people are putting on weight by consuming all type of food that they desire, and you will see such people have sweet tooth and they will consume a lot of sweets or sugary diet at this point of time, which will make them pile up weight when Jupiter is passing through the first house. So if you also want to start business, then again this is a good time because the 10th house lord is passing through the first house, and thus Jupiter becomes the most important planet for Pisces ascendant people because it rules both the first and the 10th house. This Jupiter is also aspecting the houses 5th, 7th and 9th. So if you are a student, then again this is a very good time for you because Jupiter's aspect will keep on protecting the students. At the same time, if you are married and you're planning to have a kid, then this is again a great time to have kids. Or if you're elder in age and you are actually hoping to get a grandson or a granddaughter, then again, because Jupiter is also aspecting the ninth house, and this ninth house is fifth from the fifth house. So your kids are shown by the ninth house. So this again from April 22 to April 23 for an year, you will also have a high probability of getting the grandkids if you are a bit older in age, or you may have kids yourself during this time frame. Now Mars is passing through the first house, and Mars and Jupiter are together in the first house. Mars provides a lot of energy to people whenever it passes through the first house. In this case, it is also getting associated with Jupiter. Mars is energy and speed, Jupiter is money, or it's also religion, spirituality, depending on how you want to use it. So, Mars, when it is passing through here, is going to fill people with energy and straightforward nature. But Mars operates in a very rough manner. So, these people will be prone to pick up fights at this point of time. So, they should not get into argument with anyone during the time Mars is passing through their first house. On 27th of June, Mars will enter into the second house and it will join Rahu, which is already stationed here. And this combination of Rahu and Mars will end up creating some kind of a dispute or conflict with your family members. See, Rahu station in the second house itself means that there would be misunderstanding with the members of the family. Rahu also indicates harshness or very cheap type of a speech. So there are many times people do not realize how badly they have hurt their family members just by speaking in a very bad way, and Rahu does not make them realize it there. Mars jumping along with Rahu would mean you are adding fire to deception in your speech, which is not good at all. So just watch out that you are not talking when a lot of family members are together.
That's the best way to deal with Rahu here. In June 2020, Ketu is naturally passing through the 8th house. 8th house lord is aspecting 8th house. So Venus is sitting in the second house. It is aspecting his own house of 8th. So people who were hoping to get some kind of an inheritance may be able to get it at this point of time, or they can even go and ask for their inheritance from their parents. And if you are a member who is slightly advanced in age, this can also serve as a good time for drafting your will so that you can give away your inheritance to the people or the organizations of your choice. As I said earlier, fifth house is getting protected by Jupiter. So people who want to dabble in stock market from a long term perspective can also get into the stock market at this point of time. Of course, it does not mean that you should do the gambling or try intraday swing trades and all of that. It is a matter of understanding which stocks are undervalued at this stage and get into them from a long term perspective. Jupiter's aspect on the fifth house will make sure that your assets remain protected at this point of time, and after a point of time they will grow in their value. If you are a service oriented person, that is you pursue job, then this is not the time where you will be able to get any new job in the market. Another problem is that Saturn is passing through the 12th house, and although Saturn is passing through its own house, it is also the owner of 11th house for the Pisces ascendant people. So 11th house lord passing through the 12th house would mean that your income streams would start to reduce. 11th house is for gains, so Saturn is going to hamstring your gains, is going to constrain the flow of gains, and as a result people will see a reduction in their income in the month of June. There are also some dates when people need to be very careful in every month. So for the Pisces ascendant people, these dates are 6th and 7th June, 11th and 12th June, and 19th to 20th of June. I will repeat again. These dates where person needs to be cautious are 6, 7 June, 11, 12 June, and 19, 20th June. These are the days when you should avoid taking any big decision, and you should also avoid getting into conflicts with people. Otherwise, it is bound to result in a mental agony to you. So overall, if you see, Jupiter is sitting in the first house, and first house lord in the first house is always a very good situation. And for Pisces ascendant, it only comes 1 in 12 years. So it is a very good time frame for you. And Jupiter is going to make sure that you are going to be protected from all the bad things that usually happen to people. That's all for the month of June 22. If you've liked my video, please do subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल प्रसाद जोशी एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मीन लग्न की बात करने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि जून 2022 का महीना मीन लग्न वालों के लिए कैसे साबित होगा। देखिए, मीन लग्न हमारी जो राशि चक्र होता है उसमें सबसे आखिरी में पड़ता है, मीन राशि यानी कि। और अगर आप मनुष्य की भी बात करें, क्योंकि हर भाव मनुष्य का कोई बॉडी पार्ट भी दिखाता है, तो मीन जो राशि है उसमें व्यक्ति के पांव पड़ते हैं। तो अगर आप सर से शुरू करें तो सबसे आखिरी पार्ट भी मनुष्य की बॉडी में फीट यानी कि पांव ही आता है। ये आम तौर पे जो मीन लग्न वाले लोग होते हैं ये बहुत ही पीस लविंग लोग होते हैं, ये किसी के साथ झगड़ों में नहीं पड़ते। चूंकि गुरु इनका लग्न स्थान का भी स्वामी होता है और दशम स्थान का भी स्वामी होता है, तो इन लोगों का जो नॉर्मली इंटरेस्ट एरिया रहता है, ये लोग बहुत धार्मिक होते हैं, भगवान में यकीन करने वाले, जनरली हमेशा पीस लविंग जो लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, ये सब आपको इन लग्न में देखने को मिलेंगे। संसार में बहुत से साधु संत ऐसे हुए हैं जिनका की लग्न मीन रहा है और उन्होंने ये जिसे हम स्पिरिचुअल पाथ कहते हैं उस पर बहुत तरक्की की है। अभी आपको हर लग्न में तरह तरह के लोग मिलते हैं, तो आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो पैसे के पीछे भागेंगे, जो हमारे रोजमर्रा के कंफर्ट्स होते हैं, हम मटेरियलिस्टिक गेन्स बोलते हैं, उनके पीछे भी भागने वाले लोग होते हैं। हर तरह के लोग आपको हर लग्न में मिलेंगे। लेकिन जितना मेरा अनुभव है उसमें जो भी लोग इन लग्न के रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी या नॉलेज के पीछे भागते हैं, उनको मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश देखा है कंपेयर टू उन लोगों के जो कि शुक्र से दिखाई हुई चीजों के पीछे भागते हैं। क्योंकि कर्म स्थान में भी गुरु की राशि है और लग्न स्थान में भी गुरु की राशि है। तो अगर आप गुरु का दिखाया हुआ मार्ग पकड़ते हैं तो आपके खुश रहने की जीवन में ज्यादा संभावना है, क्योंकि आखिर में हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशी रहना चाहता है। भी अगर आप जून 2022 का महीना देखें तो जो लग्न स्वामी है वो लग्न से ही गुजर रहा है। इन लग्न वालों के लिए लग्न स्वामी का लग्न से गुजरना भी एक
दुर्लभ घटना है क्योंकि ये 12 साल में एक बार होता है, गुरु को एक साल लगाता है एक भाव में। अभी बहुत अच्छा समय है क्योंकि लग्न स्वामी लग्न स्थान से ही गुजर रहा है। बहुत अच्छा समय है अगर आप धार्मिक चीजों के प्रति अपना बढ़ाना चाहते हैं ज्ञान, आप कोई भी नॉलेज किसी भी विषय के बारे में बढ़ाना चाहते हैं, या आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, तो 3 से 30 जून का समय बहुत अच्छा समय है ये सब करने के लिए। जब गुरु जहां से निकलता है तो गुरु यहाँ पर व्यक्ति का वजन बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे भी गुरु जब यहाँ से निकलेगा तो लोगों को मीठा खाने की बड़ी इच्छा होती है, जिसे हम स्वीट टूथ कहते हैं। ज्यादा अगर शक्कर खा लेंगे तो आपका वजन बढ़ने लग जाएगा। तो अगर आप खाली अब खाने पीने पे अपने ध्यान दें कि लिमिटेड खाएं, ज्यादा मीठा ना खाएं, तो ये समय में आपकी हेल्थ को भी कुछ ज्यादा तकलीफ होने नहीं वाली। अभी दशम स्थान का मालिक भी लग्न से गुजर रहा है, दोनों का स्वामी एक ही है। दशम स्थान का कर्मेश लग्न से जाना, यानी अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं नया, ये बहुत अच्छा समय है, आप बिजनेस सेट कर पाएंगे। काफी समय से सोच रहे हैं बिजनेस चालू करने के बारे में, तो भी ये समय है जिसको आप देख सकते हैं सीरियसली। गुरु यहाँ पे बैठकर पंचम भाव को और नवम भाव को देखेगा, सातवें भाव के अलावा। पंचम भाव आपका संतति का स्थान है, स्टूडेंट्स का स्थान है। तो जो छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु की दृष्टि यहाँ पढ़ के उनको प्रोटेक्ट करेगी। ये अगर शादी हुई है अभी अभी और आप बेबी वगैरह प्लान कर रहे हैं, तो भी ये अच्छा समय है। गुरु का 5वां एस्पेक्ट आपके संतति स्थान पे पड़ रहा है। और अगर आप थोड़े उम्र दराज हैं, आपके बच्चों की शादी हो चुकी है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई पोता पोती घर में, तो उसके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि गुरु नवी दृष्टि से नवे भाव को देखेगा। और नवा भाव पंचम से पंचम होता है, यानी कि आपके संतति की संतति। जब तक गुरु यहाँ बैठा हुआ है, यानी अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक, तब तक ये दोनों ही चीजें होने की संभावना बहुत ज्यादा है, डिपेंडिंग ऑन कि आप अपने लाइफ स्टेज में अभी कहाँ पर हैं। मंगल भी अभी प्रथम भाव से गुजर रहा है और ये 17 मई से 26 जून तक प्रथम भाव में ही रहेगा। मंगल जब भी प्रथम भाव से गुजरता है तो व्यक्ति में एक एनर्जी भर देता है, अपनी ऊर्जाएं तो वो लाएगा ही। व्यक्ति की पर्सनालिटी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होने लगती है, व्यक्ति ऊर्जा से भर के काम करता है। लेकिन मंगल जो है, खराब गुण भी हैं, व्यक्ति को जो है झगड़ा मोल लेने पे उतारू कर देता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता है, गुस्सा आने लगता है व्यक्ति को। जनरली अगर आप ध्यान रखें कि फालतू लड़ाइयों में ना पड़े, मंगल आपको काफी ऊर्जा देगा काम करने के लिए इस समय। 26 जून के बाद 27 जून को मंगल सेकंड हाउस में चला जाएगा और यहाँ पे राहु पहले से बैठा हुआ है। तो ये मंगल राहु का जो कॉम्बिनेशन 27 जून से बनना शुरू होगा, ये आपके फैमिली मेंबर्स के लिए अच्छा नहीं होगा। आप ये कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपकी फैमिली एक साथ बैठे या बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हो, तो आप चुप ही रहिए, क्योंकि अगर आप कुछ बोलेंगे तो राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन, यानी कि वो आपकी स्पीच ऐसी हो जाएगी कि व्यक्ति आपसे या तो मुंह मोड़ के चला जाएगा, या आपके साथ वहीं पे हाथापाई टाइप का झगड़ा हो जाएगा आपका, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ। वैसे भी अगर राहु की आप अकेली भी यहाँ स्थिति देखें, तो अकेला भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाने के लिए फैमिली मेंबर्स में काफी है। जब मंगल यहाँ ज्वाइन कर लेगा तो और भी दिक्कत हो जाएगी। तो आप जब भी फैमिली मेंबर्स के साथ बात करें, बहुत कॉशियस रहें, हो सके तो चुप ही रहिए। अभी अष्टम स्थान से केतु निकल रहे हैं और अष्टम भाव का स्वामी जो कि शुक्र है, द्वितीय भाव में बैठ के अष्टम भाव को ही देख रहा है। अगर आप उम्र दराज हैं, विल लिखना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छा समय है। या आप कुछ इनहेरिटेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको इस समय जमीन जायदाद भी इस समय मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपकी उस तरह की महादशा भी होनी जरूरी है। खाली गोचर में होने से काम नहीं चलेगा। जैसा मैंने बताया कि पंचम भाव को गुरु अपनी दृष्टि से प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं या शेयर मार्केट से लाभ कमाना चाहते हैं लंबे पर्सपेक्टिव से, तो भी ये अच्छा समय है एंट्री मारने के लिए। देखिए, जुआ अगर आप खेलने की नियत से उतरेंगे तो ग्रह आपको बचा नहीं पाएंगे, आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन लेना पड़ेगा। अगर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, आप जानते हैं कि ट्रेडिंग के मुख्य नियम प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो आप इस समय में घुस के लंबा टाइम में अच्छा धन कमा सकते हैं। गुरु यहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इंश्योर करेगा कि आपके जो भी एसेट्स हैं वो प्रोटेक्ट रहें, क्योंकि गुरु की दृष्टि हमेशा प्रोटेक्ट करती है लोगों को। अगर आप नौकरी पेशा हैं और चाहते हैं आप नया जॉब बदल लें, तो जून 2022 में काम नहीं बनेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो नौकरी अगर नहीं बदलनी है तो ये ठीक समय रहेगा नहीं। अभी 11वें भाव और 12वें भाव का स्वामी मीन लग्न वालों के लिए शनि होता है, और 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो ये आपके अगर इनकम स्ट्रीम्स मल्टीपल हैं, आपको काफ़ी जगहों से आय होती है, तो उन वो सोर्सेज में ये कमी लाना शुरू कर देगा।
देखिए सैटर्न का काम ही है संकुचित करना। तो यहाँ पर ये आपका 11वें भाव का स्वामी 12वें में गया है ना, वो आपकी इनकम के सोर्सेज जो है उनको संकुचित करना शुरू कर देगा। और आपको जो है थोड़ा सा सेविंग के मामले में सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सेविंग ओवरऑल भी इस समय में कम होना शुरू हो जाएगी। तो ज्यादा खर्चे ना करें, हमेशा सोच समझ के खर्चा कीजिए इस समय, नहीं तो शनि आपके गेन्स को बहुत जल्दी कम करने की क्षमता रखता है। ऐसे भी दिन होते हैं जब व्यक्ति को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, हर महीने में ऐसे दिन आते हैं। मीन लग्न वालों के लिए जून के महीने में 6 दिन हैं जिनमें उनको बहुत सावधान पूर्वक रहना है। ये दिन है 6 से 7 जून, 11 से 12 जून और 19 से 20 जून। फिर से रिपीट करता हूँ, 6 7 जून, 11 12 जून, 19 20 जून। ये दिन वो हैं जब आपको कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है, डिसीजन मेकिंग को पोस्टपोन कर देना है, टाल देना है, और किसी से भी झगड़ा मोल नहीं लेना है। तो आप अगर ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका जून 2022 बहुत अच्छे तरीके से बीतेगा। ऐसे भी अगर आप ओवरऑल देखें तो ये अच्छा समय है इन लग्न वालों के लिए, क्योंकि लग्नेश लग्न से गुजरना यानी समय अच्छा ही निकलेगा। ओवरऑल आपका ये एनालिसिस था मेरा जून 2022 के लिए मीन लग्न वालों के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।